Welcome to my podcast, Empower Talk, the gateway to a more empowered and enriched life. Empower Talk is not just a podcast, it's a transformative journey where we compile the success stories. So, before I invite my very special guest today, let me share something about me. My name is Arpita Chatterjee, and I embarked my professional career at the age of 19 years as a receptionist and eventually reached the position of business head. Now I become a vice president in my company, and I also learned my life coaching and manifestation coaching from several eminent mentors for last 3 years, and now I become a certified mindset and life coach. And also I have written my first book, that is Mindset is Everything, which will be launching in the month of February. So today I have a very very special guest, that is Miss Dipti Saluja. Dipti is an educator. She's also an manifestation coach and also an healer. So welcome Dipti in my podcast Empowered Talk. How are you? I'm fine, Arpita, and thank you so much for calling me in your podcast. And this is one of the manifestation which is coming through in the month of December only, and I'm feeling so blessed. Yeah. Wonderful, So wonderful. yes. So please share something So about you, because recently you also received an Energy Queen award. I also received an Energy Queen award in our mentors, yeah. this retreat. So share something Yes. about your journey. Share something about your how you start and how you're doing. I know you're doing wonderful, but share something about Yeah. more. Okay. Okay. So hello everyone. I am Deepthi Sakuja. I am from Delhi, and I'm a mother of two awesome boys. So I am a commerce educator, and I'm pursuing now as an healer and a self-love coach for women and girls. So, as Arpita just now said, yes, we have received awards in Goa. We both have received as an Energy Queens Award. So, my life is like I have started working from the age of 16 or 17. After my 12th only, I have started teaching students. मेरे से छोटे जो बच्चे होते थे मैं उनको पढ़ाती थी. That is how I am so passionate in teaching. मेरे को था. And then after my marriage, I pursue my studies. मैंने 2021 में marriage हो गई. Then I pursued my studies and completed my studies. So teaching हमेशा मेरा passion रहा है. But 2020 में जब COVID hit किया, in the meantime, I used to feel most of the time very heavy when I wake up in the morning. I don't know what is happening. कभी कभी होता है ना लाइफ में financial crisis आ रहे हैं something like that. Although I'm earning at that moment, or but the moment I learned about healing, everything started to change. And Arpita, I was going through so many problems in my body. It was like hemoglobin mera kam tha, PCOD, PCOS, and many things in my health I was going through. So that is all in 2022 मैंने अपनी mentor मुझे मिली through Facebook only. मैंने उनको देखा and I was not aware of these what is healing all about, self love क्या होता है, these are all fancy words and मैं resonate नहीं करती थी. But yes, today I can proudly say now I am helping females, girls to rise more confidently and live a peaceful life. So that is all about me. Wonderful. It was really great because generally I know that teachers are more passionate on only teaching and teaching, but what you have showed us that you, if you are not healed, if you're not happy, you can give happiness to others. So teaching is should not be less just for knowledge. It's all about that first you have to experience and then you can do that. So as you said Exactly. that healing, you healed yourself. So when is that turning point when you felt that yes, this is the point where I need to heal myself, and how you done this healing? या सो अर्पिता कभी कभी ऐसा होता है वी एज अ फीमेल हम अपने मैं कोचिंग मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है आई यूज टू टीच 11th एंड 12th स्टूडेंट्स सो वो भी टीनेजर्स ही हैं तो मैं उनसे बात करती थी तो मैंने बहुत बार देखा वो बच्चे ना मेरे पास आके रोते थे लाइक दे पीपल लाइक फील कि हम खुल के अपने घर में कोई बात नहीं कर पाते Hmm. कहीं ना कहीं वो गैप फील करते हैं अपने मम्मा पापा के साथ तो वो मेरे से बात करते थे ओके देन व्हाट आई फेल्ट विद इन माई सेल्फ कि मैं भी क्या कर रही थी घर से कोचिंग कोचिंग से घर
दैट इज आई वॉज नॉट लाइक, मुझे कोई पर्पस नहीं समझ आ रहा था लाइफ का। देन आई फेल्ट कि क्या एकेडमिकली पढ़ाना ही सफिशिएंट है क्या आजकल बच्चों को, क्योंकि स्कूल्स में तो सिखाया नहीं जाता इमोशनली बैलेंस कैसे सीखना है। एंड जब वो बच्चे स्टेप आउट होते हैं ना अर्पिता 12th के बाद, इतना ज्यादा उनके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है ना कि वो इमोशनल बैलेंस उनको आता नहीं। देन आई फेल्ट कि पहले मुझे सीखना होगा। अगर मेरा पर्पस है सर्व करना, क्योंकि मेरी एक वैल्यू है सर्विस, तो अगर मुझे सर्व करना है तो मुझे अपने लिए पहले काम करना पड़ेगा। एंड आई हील्ड माई सेल्फ। सो देयर वर सो मेनी थिंग्स इन माई चाइल्डहुड ऑल्सो, जो कॉन्फिडेंस नहीं था, या कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जो मेरे अंदर थे। देन मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग से अपने आप को हील किया। So that is how I healed myself, and then came a turning point in my life, Arpita. I, after 3 to 4 months only, all the results are coming in my life. Like health में improvement तो हुआ, but मुझे ना एक अंदर से एक self clarity मिलना start हो गया अपने profession में भी. So that is why healing is very very important in our life. ट्रू, Yeah, वेरी ट्रू। और जो आपने अभी कहा कि भाई बच्चे जो है जो स्ट्रेस में आते हैं, हमने कितना सुना है कि स्ट्रेस में आके वो सुसाइड तक कर लेते हैं, राइट? तो इट्स that's वेरी true. इंपॉर्टेंट, जो आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि क्या होता है, जब जागो तभी सवेरा, राइट? हम ऑब्वियसली हम इस एज में आके हम लोग जागे हैं, हम लोग हीलिंग किया है, हमने ये सब किया, मगर अगर आपको क्या लगता है अगर बचपन से ही हम स्कूल में ही हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी मिलती हमें हील करने को अपने आप को, या अपने ट्रॉमास को, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास जो भी हमने फेस किया उसका अगर कोई उस मोमेंट पे कोई होता जो हमें हेल्प करता, तो हमारा कितना अच्छा, हमारी वी विल बिकम अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, Exactly. दैट हाउ वी Yeah. कैन डू फॉर आवर चाइल्ड अवेयरनेस, मतलब बच्चों में अवेयरनेस ये जानने के लिए, पेरेंट्स में अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि हम और ज्यादा बच्चों को हम कर पाए? एग्जैक्टली तो अर्पिता क्या होता है, कभी कभी पेरेंट्स को मैंने ही सुना है कहते हुए कि मैम आप समझाओ मेरे बच्चे को, मैं नहीं समझा पा रही हूँ क्योंकि वो मेरी मानता नहीं है। तो हम्म। आप ये सोचो वो आपकी क्यों नहीं मानता। वो आपकी इसलिए नहीं मानता बिकॉज क्या है, वो पेरेंट्स की हील नहीं है अंदर से। उनके अंदर भी वो हीलिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई वो अपने बच्चों पे अननेसेसरली दे आर लाइक थोप रहे हैं कि नहीं अब आप आईआईटी जेई कर लो, आप ये बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। बट लाइक बच्चों को ये नहीं पता गोल सेटिंग करनी कैसे है। They are हम्म। not aware of their passion even. So that is how I introduce them these passion, why passion is very important for you, why goal setting is very important for you. And believe me अर्पिता, आजकल के बच्चे इतने पैशनेट हैं, जब मैं उनको मेडिटेशन कराती हूँ ना, वो इतना इंजॉय करते हैं उस प्रोसेस को। लाइक उनको ना बहुत अंदर से ना फुलफिलमेंट मिलता है। एंड दे यूज टू कॉल मी कि दीप्ति मैम आप कब ले रहे हो मेरा सेशन। मतलब इट्स अमेजिंग रिजल्ट्स आई एम गेटिंग फ्रॉम माय टीनेजर स्टूडेंट्स राइट नाउ। आई हैव अ ग्रुप, आई हैव क्रिएटेड अ ग्रुप फॉर माय स्टूडेंट्स एंड आई सर्विंग them from last 1 years. They are getting amazing results. Until now we have 25 to 28 students in that group. वाह। Yeah. So how anyone can approach you for, because I know you're a wonderful human being and wonderful healer also. So how people can approach you? Though I can write your Insta ID in my entry description also, but still if you Yeah. can share something so that people can approach you and get that all help that you are doing with people. एग्जैक्टली आई यूज टू लाइक वन ऑन वन कॉल पे मैं उनको बात करती हूँ, पहले क्लैरिटी कॉल देती हूँ। इफ आई फील एंड 6 to 7 days तक मैं उनको फ्री सेशन देती हूँ अर्पिता, सो Okay. दैट मेरे को पता चले कि वो रेजोनेट कर रहे हैं इस वर्क से नहीं कर रहे। जैसे Okay. जैसे वो समझ जाते हैं ना साइंस को, मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन लाइक पॉजिटिव सोचो और मैनिफेस्टेशन हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव सोचने से नहीं होता। वो कहीं ना अर्पिता हमारा सबकॉन्शियस माइंड में एज 95% टू 97% हमारी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड रोल प्ले कर रहा है। और उसके अंदर वो सारा पास्ट में जो भी हुआ हमारे साथ इवन इन चाइल्डहुड इटसेल्फ या पास्ट लाइफ में हुआ, वो सब उसके अंदर है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हम हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं, वो होती ही नहीं है। द रीजन बीइंग सबकॉन्शियस पैटर्न्स या लिमिटिंग बिलीव्स हैं उसके अंदर। तो मैं पहले क्या करती हूँ, मैं 6 to 7 days तक उनको प्रैक्टिस कराती हूँ कुछ चीजें।
एंड द मोमेंट दे रियलाइज वो अपने आप एनरोलमेंट लेते हैं मेरे पास. सो सबकॉन्शियस पे वर्क करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना हमारा जो कनेक्शन है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हम कॉन्शियसली तो मैं रोज उठना चाहती हूँ, मैं अलार्म भी लगाती हूँ, बट मैं उठ क्यों नहीं पाती हूँ? रीजन बीइंग मैंने बार बार अपने आप को ट्रेन करा कि मैं नहीं उठ पाती हूँ. इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू वेक अप इन द मॉर्निंग. बट अगर मैं ये बोलना स्टार्ट कर दूं, इट्स इजी फॉर मी, लाइक मैं कर सकती हूँ. और मैं रोज ना, जब मैं उठ रही हूँ तो मैं उस तरीके का एनवायरनमेंट बनाऊं, टाइम से सोना, अपना लाइक योगा मैट सामने रखना, एवरीथिंग आई यूज टू डू दैट. तो तभी वो सारी चेंजेस मेरे अंदर आए हैं. राइट. सो लाइक जो मतलब लोग हीलिंग वगैरह नहीं जानते या नहीं समझते, तो आप क्या प्रैक्टिसेस, डेली प्रैक्टिसेस, सिंपल प्रैक्टिसेस आप सजेस्ट करोगे लोगों को जो स्टार्ट करे, जिससे कि उनके अंदर वो फीलिंग आए कि नहीं, मुझे भी ये प्रैक्टिसेस से कुछ बेनिफिट मिल रहा है? ऐसे कोई हाँ तो प्रैक्टिसेस सिंपल जो आप करते हो? yeah, it's a mirror exercise. The first thing which I have learned from my mentor, and it's like I enjoy doing right now even. मतलब इतना टाइम हो गया मुझे इस प्रोसेस में, but आज भी मैं करती हूँ. Mirror exercise is something when first time you introduce yourself, like आप अपने आप से कनेक्ट होते हो. मतलब अर्पिता, यकीन मानो, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी आंखों में आंखें डाल के ना ढंग से देखा था 2022 में, जब मेरी मेंटर ने मुझे बोला था मिरर एक्सरसाइज करो और वीडियो बनाओ. इट वॉज लाइक हम कभी ना इतना डीप कनेक्ट नहीं होते अपने आप से. एंड देन आई एक्नॉलेज माई सेल्फ, इवन आई एक्नॉलेज माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. क्योंकि उस टाइम तक मैं, होता है ना, हम अपना वीकनेस भी एक्नॉलेज नहीं करते. तो एवरीथिंग आई एक्नॉलेज एंड देन आई आस्क माई सेल्फ, अब मुझे आगे लाइफ में कैसे बढ़ना है. सो दैट इज द रीजन कि किसी को भी हीलिंग करना है ना, तो सबसे पहले मिरर एक्सरसाइज बहुत हीलिंग देता है. उससे आपको खुद से पता चल जाएगा कि मुझे और आगे इस पाथ पे कैसे जाना है. राइट. सो दैट इज हाउ, दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिस. एंड देन सेकेंड प्रैक्टिस मैं क्या कराती हूँ, मैं उनको ना ग्रैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस समझाती हूँ. राइट. क्योंकि वट एवर वी आर सीकिंग, जो भी हमारे आसपास होता है ना, हम ना बहुत सारी चीजें ना इग्नोर कर देते हैं अपने आसपास, क्योंकि वी डोंट काउंट आवर ब्लेसिंग्स. हमारा फोकस ज्यादातर उस चीज पे होता है जो नहीं है हमारे पास. राइट. So that is all we attract in our life. And the moment I have started anchoring moments, जैसे ना मैं क्या करती हूँ, मेरा एक फेवरेट प्रैक्टिस है कि जब भी मैं पानी पीती हूँ, आई यूज टू से कि मेरी बॉडी ना, मेरे हर ऑर्गन बॉडी का और एनर्जेटिक हो रहा है, मैं और ग्लो कर रही हूँ. तो ना विद एवरी सिप ऑफ वाटर आई फील ग्रैटिट्यूड इनसाइड माई हार्ट. तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराई है फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स कॉन्टिन्यूअसली. वो लोग 25 ग्रैटिट्यूड्स जरूर लिखते हैं, एवरी सिंगल डे वो लोग लिखते हैं. एंड दे वाह. आर फीलिंग सो मेनी चेंजेस इन देमसेल्व्स. वाह. Yes, that's या true. That's true. Because gratitude is really, really effective. मैंने भी अपने लाइफ में अगर कुछ changes मिली है just because of gratitude. The moment we are change our mindset of, from complain and this uh, all complain and कंपैशन. criticizing to या gratitude, it definitely a life become change. ओके, तो आपने बहुत सारी एग्जैक्ट. अच्छी चीजें बताई हमें. तो लेट्स नाउ प्ले वन स्मॉल गेम ऑफ रैपिड फायर राउंड. थोड़े फास्ट या फास्ट क्विक क्विक आंसर करते हैं हम, ठीक है? आई विल या आस्क यू सम क्वेश्चन एंड यू नीड टू गिव इन अ वर्ड, ओके? आंसर इन क्विकली, ओके? सो आर यू रेडी? यस. ओके. So one word to describe manifestation. Alignment, it's alignment. Okay, heart or mind, which manifests faster? हार्ट. व्हाई? बिकॉज हार्ट इज इम्पोर्टेंट. व्हाई? क्योंकि अगर दिल में आपके पास इमोशनली आप कनेक्ट नहीं होगे, तो आपका वो माइंड भी साथ नहीं देगा. True, very true. Which chakra blocks manifestation the most? रूट चक्रा. इट्स अ Hmm. सेफ्टी, इट्स अ पॉइंट वेयर वी फील ग्राउंडेड. जब अनसेफ फील करते हैं, इनसिक्योर, तो वो रूट चक्रा ब्लॉक करता True, है. true. One daily habit to raise vibration instantly. टेक अ डीप ब्रेथ, बॉक्स ब्रीदिंग. What's इनहेल, feeling? होल्ड, एक्सेल, होल्ड. Okay. Affirmation or visualization? Your favorite? Yeah, my favorite is affirmation because words have power. When we Yes. affirm, after then it is easy to visualize. Right. So morning or a night, best time to manifest. Night, subconscious is more active in night. Right.
One chakra everyone ignores but should not. Okay, so that is again root and heart chakra. When we don't forgive anyone, when we hold on so many resentments and everything. Okay. So silence or soft music during chakra healing. Very soft music. Yeah. Okay. Intuition or logic, which guides you more? Intuition. Intuition, when we trust our intuition, then logic makes sense. So one limiting belief you see most of people have. Yeah. I'm not good enough. It's hard for me to change. Money is hard to earn. All these limiting beliefs. Great, super. You're so quick in answer. So we are talking about chakras and this. So chakra, we Yeah. know there's 7 points of chakras, and as you said, the root chakras is the most important. So like, how the person can know that which chakra is blocking? Like, what are the signal? Like, how you can, if you can guide that, how the people can know that which chakra is blockage for them particularly. या तो अर्पिता वैसे वी हैव 7 चक्रास जो सबको पता होता है चक्रा ऊपर भी होता है एट चक्रा भी होता है सो द 7 चक्रा में से जो फर्स्ट चक्रा है दैट इज रूट चक्रा वो हमारी बेस ऑफ द स्पाइन होता है तो जो बेस ऑफ द स्पाइन में उसका कलर कलर है सब चक्रास का ना दे आर नथिंग जस्ट एन एनर्जी पोर्टल्स ये एनर्जी गेटवेज होते हैं अगर ये बैलेंस हैं तो बहुत मुश्किल किसी भी चीज में हमें नहीं होता इवन फिजिकल जो एलिमेंट्स आते हैं वो भी नहीं आते तो जब भी फिजिकल फॉर्म में कोई डिजीज आती है इट कैन बी हार्ट इट कैन बी एनीथिंग आपके लेग्स में बैक पेन हो रहा है इट्स ऑल बिकॉज योर चक्रास आर नॉट अलाइंड सो कमिंग ऑन टू फर्स्ट वन द रूट चक्रा तो रूट चक्रा का मतलब क्या है बहुत सारे लोग ना हर वक्त ना फियर ऑफ अननोन रहता है उनके अंदर अब क्या होगा क्या हो जाएगा मेरा बच्चा बाहर गया है तो कहीं कुछ हो ना जाए उसको ऑलवेज देयर इज अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी और जब Hmm. हमें हर वक्त किसी ना किसी चीज का डर रहता है या कभी कभी ना आज के टाइम पे तो मनी फियर बहुत है Hmm. पैसों का बहुत फियर है इंस्टेबिलिटी रिलेटेड टू मनी Hmm. ये सारी चीजें रूट चक्रा ब्लॉक करती हैं और अगर आपका रूट चक्रा ब्लॉक है ऊपर के जितने भी चक्रास हैं ना वो फिर आपके प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं आएंगे सो द बेस्ट थिंग इज वेन एवर यू फील बहुत डर लगता है फियर आता है आपको सिर्फ इतना बोलना है आई एम सेफ आई एम रिलैक्स्ड आप जैसे ही बोलोगे ना आई एम फाइनेंशियली सेफ बिकॉज बेसिकली रूट चक्रा ना हमें ग्राउंडिंग एनर्जी देता है तो आप मैं अपने ना स्टूडेंट्स को बात कराती हूँ जैसे हैंड्स को ना इस तरीके से मदर अर्थ की तरह आई यूज टू से देम आई रिलीज माई ब्लॉकेजेस आई रिलीज माई फियर और वो 3-4 बार बोलने से ही आपको ग्राउंडिंग फील होना स्टार्ट होता है सो दिस इज रूट चक्रा नाउ कमिंग टू सेकंड चक्रा हमारा एब्डोमिनल में होता है वो चक्रा है स्वाधिष्ठान चक्रा दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज सेक्रेल चक्रा जहाँ बेबी बॉर्न होता है वो बेसिक पॉइंट होता है तो इसका जो मतलब एलिमेंट है ना वाटर का मतलब क्या है जिसको फ्लो करते रहना है लाइफ में उसको रुकना नहीं है तो फीमेल्स का ना सेक्रेल चक्रा सबसे ज्यादा ब्लॉक रहता है वाई क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम खुल के जीते हैं खुल के हंसते हैं खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं पर जब शादी हो जाती है तो क्या होता है हम अंदर ही अंदर ना उस फ्लो को रोक देते हैं एंड दैट इज द रीजन बहुत टाइम होता है कि उस चक्रा ब्लॉक होने से पीसीओडी पीसीओएस और बहुत सारे इश्यूज फीमेल फेस करती हैं सो ये जो चक्र है ना ये आपका बैलेंस होता है जब आप खुद से कहते हो कि आई इंजॉय माई लाइफ आई इंजॉय इवन सिंगल मोमेंट ऑफ माई लाइफ तो इस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस करने लगते हो छोटी छोटी सी स्मॉल स्मॉल विंस पे भी अपने आप को इंजॉय करते हो तब ये थोड़ा बैलेंस होने स्टार्ट होता है तो जैसे जैसे चक्रास है ना अर्पिता इनके ना अपने अपने मंत्रास भी हैं तो मैं मंत्रास पे बहुत बिलीव करती हूँ मैं मंत्र और एक ये चक्रा बैलेंस से ही मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्टेशन किया है तो जब भी मुझे कोई चीज मैनिफेस्ट करनी होती है सबसे पहले मैं चक्रास के मंत्रास बोलती हूँ देन आई आस्क डिवाइन टू लाइक मुझे ये चीज चाहिए एंड देन आई बिलीव इन दैट और वो चीज मेरे पास जल्दी आती है इट्स माई बिलीव सो कमिंग ऑन टू थर्ड चक्रा सोलर प्लेक्सिस सोलर प्लेक्सिस चक्रा वो होता है जो मेरे नाभि के थोड़ा सा ऊपर होता है उसका कलर येलो होता है तो जब हम खाना खाते हैं ना हमारे पेट में जठ रागिनी होती है जो खानों को डाइजेस्ट करती है
बट जब हम अपने अंदर पावरलेस फील करते हैं, जैसे होता है ना, कुछ लोग कहते हैं मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिन में काम ही नहीं कर सकती हूँ, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा इम्बैलेंस होता है। उससे क्या होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन, ये सब किडनी इश्यूज भी आ जाते हैं। सेक्रल और सोलर प्लेक्सस से किडनी स्टोन्स भी होते हैं ज्यादातर। तो जब आप उस चक्रा को अपना एफर्मेशंस देते हो, लाइक आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, इस तरीके से बोलना, एंड प्लस आप मंत्रा यूज करते हो रम, और इतनी पावर है अर्पिता इसमें, जब हम आंख बंद करके ना 5 मिनट भी बोलेंगे राम, अब पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस फील होगा। जस्ट आई थिंक it's my internet connection is going, Yeah, it's something is fluctuating, there, but still I can कनेक्शन hear ठीक आ रहा है मेरा clearly. इंटरनेट का। Yeah. Okay, okay, got it. So now coming on to our heart chakra, Arpita. So heart chakra is basically the area जो सबसे ज्यादा आज के टाइम पे देखा जा रहा है, लोगों को हार्ट का इशू बहुत ज्यादा है, हार्ट का बहुत ज्यादा इशू होता है। तो उस केस में क्या होता है, जब हम बहुत पुराना, बहुत किसी से कोई लड़ाई हो गई, कुछ बात हो गई, वो हमने आज भी दिल पे रखी हुई है कि मेरी मदर इन लॉ ने ऐसे क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ चाइल्डहुड में। सो व्हेन वी आर अनेबल टू फॉरगिव एनीवन, तो वो हार्ट चक्रा जो है ना, वो ब्लॉक होता है। जब भी हम फॉरगिवनेस देना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे हार्ट चक्रा फ्लो करने लगता है, क्योंकि इसका एलिमेंट एयर एलिमेंट है, एंड इट इज ग्रीन इन कलर। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे फादर को ना हार्ट का बाईपास सर्जरी होनी थी, बट नहीं हुई अभी मेरे फादर को, और मम्मा का भी रिसेंटली हार्ट का इशू कुछ आया था। सो एट दैट मोमेंट माय मदर यूज्ड टू गिव ग्रीन एनर्जी, वो अपने हार्ट को ग्रीन लाइट देते थे, और वो यहाँ पे चांट करते थे यम, YAM, यम। और इतना हीलिंग मिला मम्मा को, बहुत ज्यादा उनको हेल्प मिला इससे। तो ये चक्रा मनी का चक्रा है बेसिकली, आपका मनी का चक्रा है, या आप कह सकते हो कि जब आप लव लेते नहीं हो, तो जब भी इस चक्रा पे हमें काम करना है ना, हमें बोलना चाहिए आई एम ओपन टू रिसीव लव एंड गिव लव। अगर इस तरीके से हम लेना और देना इजी हो जाए, जैसे लव देना और लव लेना, तो ये चक्रा बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। सो दीज आर डिफरेंट चक्रास, Arpita. Wonderful. And then coming on to this, yeah, this is throat chakra. As you know, throat chakra हमारा कम्युनिकेशन का होता है, एंड वी बीइंग अ टीचर, हम लोगों को बहुत जरूरत होती है अपने थ्रोट चक्रा की, एंड ईच पर्सन नीड्स की टू हील थ्रोट चक्रा। तो जब भी ऐसा होता है ना, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या मैं कुछ बोलना चाहती हूँ बट मैं पी गई, मैंने कहा चलो छोड़ देती हूँ, नहीं बोलती, वो पी लेना गलत है, वो ब्लॉक कर दिया उसने। चाहे बोलो, कुछ भी करो, बताओ, एटलीस्ट एक्सप्रेस करो। अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो ना, तो अपनी नोटबुक में लिख लो। जब आप उसको बाहर निकालते हो, तो वो फ्लो करने लग जाता है एनर्जी। देन कमिंग ऑन टू दिस चक्र, थर्ड आई चक्र, ये सबको पता है थर्ड आई चक्र, यहाँ पे ओम हम लोग ज्यादातर मेडिटेट करते हैं। तो ये इंट्यूशन का चक्र है, क्लैरिटी फ्रॉम द यूनिवर्स। तो जब भी ये वाला चक्र हमारा बैलेंस रहता है, तो हमें कभी भी आइस का इश्यू नहीं आता। अगर आइस का इश्यू है, आपको स्पेक्स लग रहे हैं, दैट मीन्स आपका ये चक्र बहुत हेवी है। इसका मतलब ओवर थिंकिंग आप बहुत करते हो। जो जो लोग ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, उन्हें स्पेक्स लग जाएगा। सो दैट इज हाउ इट्स वर्क। एंड देन द Okay. लास्ट वन इज द सहस्त्रार, या क्राउन चक्र। क्राउन चक्र इट मीन्स दैट यू आर कनेक्टिंग विद द डिवाइन। You have actually explained all the chakras. That was very beautifully you explained. So, Dipti, thank you so much. What last message you want to give to all the listener, all the audience who are going to watch this podcast, especially women? If you want to give any message, please feel free to give some message. Yeah, I just want to say you need to feel as if divine is already within us. अर्पिता, हमारे अंदर already divine है. We just need to connect with our own self. तो जब भी हम सुबह उठते हैं, the first thing which we need to do is I love this day. और मैं ये रोज बोलती हूँ, like कि thank you dear divine for this beautiful day. And I am like I'm thankful for each and everything. मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरी फैमिली अच्छी है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल विंस इन माय लाइफ। तो जब आप अपने स्टार्ट की डे बहुत अच्छे से लाइक एफर्मेशन से करते हो, तो आपका
आपका वो पूरा डे इजीली आप मैनिफेस्ट गुड थिंग्स ही करोगे उसके अंदर. सो द फर्स्ट थिंग इज स्टार्टिंग योर डे विद द एफर्मेशंस. एंड द सेकेंड थिंग, जब भी आपके पास कोई नेगेटिव कुछ आए, जस्ट स्टॉप फॉर अ मोमेंट, उसको थैंक यू बोलो फॉर कमिंग, एंड जस्ट यू नीड टू से बट आई चूज टू बिकम माई बेस्टेस्ट वर्जन, आई चूज टू बिकम स्ट्रॉन्ग. सो वो आता ही नहीं है, वो खुद ही चला जाता है. सो दैट इज हाउ आई एम डूइंग all these practices. Wonderful. It's very little things. We Yeah, read so many times, but we never implement it. So that is something very exactly. beautifully you said that if you can practice this little thing, then also life become changed. So thank you so much. You Yes, have actually given a thank very you. very wonderful nuggets to all the audience who are going to watch this podcast. So thank you so much and wish you all the best for your career and in advance happy new year. I'm sure you will Thank already you. growing, you grow more and more. So thank you so much once Thank again. you. Thank you. Thank you. Thank you, dear Arpita. Thank you so much. Thank you, dear.